পশ্চিম বর্ধমানের কলকাতার পর অন্যতম প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়িক সংগঠন রানীগঞ্জ চেম্বার অব কমার্সের পরিচালন সমিতি নির্বাচন শেষবারের মতন অনুষ্ঠিত হয়েছিল 2014 সালে। অতএব গত 4 বছর ধরে চেম্বার অব কমার্সের সদস্যরা পরিচালন সমিতি নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়ে আসছিলেন। গত আর্থিক বছর 2018-19 এর জন্য রানীগঞ্জ চেম্বার অব কমার্সের পরিচালন সমিতির নির্বাচন করা সম্ভব হয়নি। রানীগঞ্জ চেম্বার অব কমার্সের পরিচালন সমিতির মোট আসন সংখ্যা 23টি, কিন্তু 23টির বেশি প্রার্থীরা তাদের নাম প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য নির্বাচন করা যায়নি। আর্থিক বছর 2019-20 জন্য রানীগঞ্জ চেম্বার অব কমার্সের পরিচালন সমিতি আগামী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে আগামী 10ই মার্চ। দুই দলকে মিলিয়ে মোট 23টি আসনের জন্য প্রার্থীর সংখ্যা রয়েছেন 39। একটি দলের নাম দেওয়া হয়েছে ইউথ উইথ এক্সপিরিয়েন্স, অন্য দলটি ট্রান্সপারেন্ট, রেসপন্সিবল অ্যান্ড প্রোগ্রেসিভ। ইউথ উইথ এক্সপিরিয়েন্স দলের মোট প্রার্থী সংখ্যা রয়েছে 17 জন। তাদের নামগুলি হলো যথাক্রমে অমিত সারাফ, অনিল লোহারওয়ালা, অনিশ টুডি, অরুণ ভারতিয়া, বিজয় কুমার খৈতান, দীপক জালান, যুগল কিশোর গুপ্তা, ওম প্রকাশ বাজুরিয়া, প্রদীপ বাজুরিয়া, প্রকাশ সারাফ, রাজেন্দ্র প্রসাদ খৈতান, রোহিত খৈতান, সলিল সিনহা, সুশীল লোহারওয়ালা, সুনীল নন্দী, শ্রবণ কনোডিয়া এবং সন্দীপ ঝুঁঝুনওয়ালা। অন্য দলটির প্রার্থীর সংখ্যা মোট 22 জন। তারা হলেন যথাক্রমে আনন্দ কুমার কেডিয়া, অশোক দত্ত, আয়ুষ সারাফ, বিমল কুমার লোধা, গির্জাশঙ্কর কয়াল, গৌরীশঙ্কর বাজুরিয়া, গুরুচরণ সিং, হরিপ্রসাদ সোমানি, কৈলাস কুমার মোদী, পারভেজ আক্তার, ওম প্রকাশ সাউ, ওম প্রকাশ কেজরিওয়াল, মিলন কান্তি মন্ডল, মঞ্জিত সিং, পবন কুমার ট্যান্ডন, সঞ্জয় কুমার ডালমিয়া, শতাব্দী অধিকারী, সুনীল কুমার গ্যানেডিওয়ালা, উজ্জ্বল কুমার মন্ডল, বিবেক ভুয়ালকা এবং বিষ্ণু খৈতান। কিন্তু এবার এমনটা কেন হলো যে রানীগঞ্জ চেম্বার অব কমার্সের পরিচালন সমিতি নির্বাচন অনেক প্রচেষ্টার পরও এড়ানো গেল না? সূত্রের খবর, পরিচালন সমিতি নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বীদের নিয়ে দুই দলের মধ্যেই বৈঠক হয়। ম্যারাথন বৈঠকের পরও আগামী 10ই মার্চ পরিচালন সমিতির নির্বাচনকে এড়ানো গেল না। কারণ হিসেবে জানা গিয়েছে, বর্তমান কমিটির সভাপতি সন্দীপ ভালুটিয়া এবং সম্পাদক সন্তোষ টাটিয়াকেই আগামী আর্থিক বর্ষের জন্য সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত করতে হবে। বোর্ডে তাদেরই আধিপত্য থাকবে, কিন্তু যা অন্য দলটি মানতে নারাজ, যে কারণে এবছর পরিচালন সমিতি নির্বাচন এড়ানো গেল না। তাদের বক্তব্য, যাদের জন্য আমরা গত আর্থিক বছর 2018-19 জন্য রানীগঞ্জ চেম্বার অব কমার্সের পরিচালন সমিতির দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছিলাম, তারাই বর্তমানে তাদের কাছে অনৈতিক দাবি করছে, যা কোনো মতেই মানা সম্ভব নয়। তাদের বক্তব্য, তাদের জন্য আমরা গঠিত কমিটি ভেঙে দায়িত্ব তুলে দিয়েছিলাম। চেম্বারের সভাপতি হওয়া কানাইয়া সিং এবং কার্যকারী সভাপতি হওয়া আর.পি. খৈতান, বিজয় খৈতান সহ 5 জন তাদের পদ থেকে পদত্যাগ করে চেম্বারের সভাপতির দায়িত্ব সন্দীপ ভালুটিয়ার হাতে দায়িত্বভার তুলে দেওয়া হয়েছিল। তবে দুঃখের কথা, তারাই আমাদের কাছে শর্ত রাখছে। রানীগঞ্জ চেম্বার অব কমার্সের মুখ্য উপদেষ্টা কানাইয়া সিং বলেন, এই নির্বাচন চেম্বারের মান মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠার নির্বাচন, যেখানে অভিজ্ঞ থেকে নতুন প্রজন্ম এগিয়ে আসবে। চেম্বারের ভবিষ্যৎ রয়েছে তাদের হাতেই। 3-4 साल गैप हुआ, कोई न कोई अच्छा रीजन हुआ तभी चुनाव नहीं हुआ होगा। ये चुनाव हो रहा है, इसका हम स्वागत करते हैं। ये चुनाव टालने की काफी प्रयास किया गया, फिर भी चुनाव टला नहीं, इसको क्या वजह मानते हैं? अब प्रयास काफी हुआ, कुछ लोग बीच में थे जिन्होंने प्रयास किया, परंतु कुछ ऐसे कंडीशंस उनके द्वारा थोपे जा रहे थे जिससे इस ग्रुप को मानना संभव नहीं था, इसलिए उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। ऐसी क्या बात थी जो माने चेंबर के हित में नहीं थी क्या? जैसे चेंबर के हित में और अहित में दोनों के लिए इलेक्शन हो रहा है। चेंबर का जो हित चाहने वाले पहले से ही है, अभी भी हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। उनके दिमाग में ये है कि वर्तमान में जो कुछ बातें हुई हैं गत वर्ष में, ये अप टू दी मार्क जो चैम्बर का जो एक प्रतिष्ठा गरिमा है उसके अनुकूल नहीं हुई है। तो ये सोचा गया कि भाई इसमें कुछ परिवर्तन होना जरूरी है, परंतु उधर से अप्रोच हुआ था, परंतु उस कंडीशन के साथ कि नहीं, वर्तमान में जो ऑफिस बेयर है वही रहेंगे, तो बात आगे बढ़ी नहीं है। অন্যদিকে চেম্বারের সাধারণ সদস্য তথা বিশিষ্ট ব্যবসায়ী রমেশ লোয়ালকা বলেন, সম্ভবত চেম্বারের ইতিহাসে এটাই প্রথমবার যেখানে দলগতভাবে নির্বাচনে নামা হতে চলেছে। हम तो चेंबर का जो चुनाव आज तक होते आया है, इसमें कभी कोई दल वल बना हो ऐसा नहीं सुना। ये पहली पोत है कि कोई दल वल बन के चुनाव हो रहा है। हम लोग व्यवसायी हैं, अपना
नहीं होना चाहिए, किंतु चेंबर में एक्सपीरियंस लोगों का बहुत दरकार है और यंग लड़के भी रहे, तभी चेंबर का व्यावसायिक लोगों का भला हो सकता है। आप किस दल के साथ हैं और आपको क्या लगता है कौन लोग चेंबर को सही तरीके से आगे ले जा सकते हैं? नहीं, हम किसी भी दल के साथ नहीं हैं। जो भी अच्छे लोग हैं, जो भी एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, हम उनके सबके साथ हैं। ইউথ উইথ এক্সপিরিয়েন্স দলের প্রার্থী সুনীল নন্দী বলেন, রানীগঞ্জ চেম্বার অব কমার্সের একটি পুরনো ঐতিহ্য রয়েছে যা বজায় থাকুক এবং তারই দায়িত্ব নেক এবং যারা নতুন প্রজন্ম আসছেন তাদেরকে সঠিক পরিচালনা করুক। তিনি বলেন, গত বছর যারা এসেছিলেন তারা সব কাজের মাধ্যমে খুশি করতে পারেননি এবং বর্ষিয়ান সদস্যদের সঠিকভাবে সম্মানও দিতে পারেননি। আছে যার জন্য আমরা চাই যে আমাদের সেই পুরনো মেম্বাররা এসে ভালো করে চেম্বারটাকে চালনা করুন। আর নতুন যারা এসছেন অনেকেই নতুন মেম্বার আমাদের এই কমিটিতে আসবার ইয়ে করেছেন, কিন্তু তাদের যেটা উদ্দেশ্য তারা সিনিয়র মেম্বার দিকে অতটা গুরুত্ব দিচ্ছে না। যার জন্যে আমরা চাই যে আবার পুরনো মেম্বাররা এসে এই পুরনো ঐতিহ্যটাকে রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্সকে আরও উন্নতির শিখরে তুলে ধরুন। আছেন যারা নতুন এসেছিলেন তাদের কাজে এমনি কিছু কাজ তারা করেছে, তবে সব কাজে আমরা খুশি হতে পারিনি। দ্বিতীয় কথা, আমাদের পুরনো সব প্রবীণ মেম্বার যারা ছিল তাদেরকে তারা সম্মান দিতে পারেনি ঠিক মতন। দীপক জালান বলেন, গত 5 বছর ধরে তিনি রয়েছেন চেম্বার অব কমার্সের সাথে, যা দায়িত্ব পেয়েছেন তা সঠিকভাবে করে গিয়েছেন। এই নির্বাচন নিয়ে তিনি বলেন, যে কোনো সংস্থা প্রতিষ্ঠিত তখনই হয় যখন নতুন প্রজন্ম কাজ করে আর বড়রা তাদের পরিচালিত করে। बड़ों का सहयोग नहीं रहेगा, बड़ों का एक्सपीरियंस, काम यूथ करता है लेकिन बड़ों का एक्सपीरियंस की भी जरूरत पड़ती है। तो बड़े लोग जो एक्सपीरियंस शेयर करके उनसे चैम्बर काफ़ी आगे बढ़ा है और आगे बढ़ेगा। अभी डिजिटल दौर आ गया है, अभी डिजिटल दौर में SME इंडिया, डिजिटल इंडिया, अब इस सब का बहुत है। अभी व्यापारी लोग के पास में तुरंत इनकम टैक्स की, सेल टैक्स की, GST की चिट्ठी आ जाती है, वो घबरा जाता है क्या करना नहीं करना है, कहाँ जाए नहीं जाए। चार्टेड लोग भी सब जगह हेल्प नहीं कर पाते हैं, जो छोटे व्यवसायी है उनको चार्टेड नहीं रहता है उनका, वो चिट्ठी ले घूमते रहते हैं। तो इस बार चैम्बर का एक प्रयास है कि SME इंडिया, डिजिटल इंडिया, हेल्प डेस्क बोल के हम लोग चैम्बर में काउंटर खोलने जा रहे हैं। वो अपनी फ्री सर्विस देगा। किसी बिजनेसमैन को भी अगर इससे रिलेटेड, डिजिटल रिलेटेड, GST रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी तो वो आए, हम यथासंभव उसको यानी शेयर करेंगे, उसको सोल्यूशन निकालेंगे उसका, और बाकी डेवलपमेंट का जो काम जैसे चल रहा है। প্রদীপ বাজুরিয়া বলেন, বহুদিন ধরে তিনি চেম্বারের সঙ্গে যুক্ত এবং প্রবীণদের সঙ্গে মিলেই এগিয়ে চলতে চান। তিনি বলেন, চেম্বার শুধু বড় ব্যবসায়ীদেরই নয়, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদেরও তারা সাহায্য করেন। सभी बुजुर्ग सीनियर मेंबर के संरक्षण में उनके अनुभव के अनुसार उनसे काम भी सीख रहे हैं और अपनी सेवा भी दे रहे हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने चैम्बर में इस बार यूथ विथ एक्सपीरियंस की टीम में चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है और हम लोग जो जनरल मेंबर हैं, जो साधारण मेंबर हैं, जो छोटे व्यापारी हैं और व्यापारी वर्ग, उनकी हितों का समुचित ध्यान रखना चाहते हैं। चैम्बर का जो मेन मुद्दा है व्यापारी समाज का, व्यापारी वर्ग का, व्यापारियों का काम चैम्बर में द्रुत गति से हो, जिसका मुझे कमी लग रही थी और इसी को हम लोग चेष्टा करेंगे कि सारे व्यापारी भाइयों का काम द्रुत गति से चैम्बर में हो, उनकी छोटी से छोटी समस्याओं का निवारण हम कर सके, ये हम लोग का मेन उद्देश्य है। সন্দীপ ঝুনঝুনওয়ালা বলেন, রানীগঞ্জ চেম্বারের এক সদস্যের মারফতে কথাবার্তার ভয়েস রেকর্ডিং এর মাধ্যমে কুৎসা ছড়ানোর ঘটনা যথেষ্টই দুর্ভাগ্যজনক। তিনি বলেন, যারা বর্তমান কমিটিতে রয়েছেন তারা যে কাজ করছেন তা নতুন কিছু নয়, এসব বহু আগেই করা হয়েছে। তবে নতুন কিছু করে দেখাতে পারলে নতুন কমিটিও তা অনুসরণ করবে। ऐसी घटनाएं घटी जिसके कारण हम लोगों ने रिजाइन किया और उसके कारण ये पूरी टीम वापस आई है, माने इनको लाया गया। तो इनसे एक अच्छी अपेक्षा थी कि यंग जनरेशन है, यंग बैच है, सबके सहयोग से काम करेंगे। तो अपेक्षा पर खरे उतरे क्या उन लोग? बिल्कुल ही नहीं है। अभी जो उन लोगों ने जिस प्रकार का प्रचार चालू कर रखा है, जो मैंने देखा व्हाट्सएप के माध्यम से, उसमें आप देखेंगे तो 90% कार्यक्रम वही सब हैं जो कि हर साल होते हैं।
चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी हो, चाहे BLRO कैंप हो, चाहे टैक्सेशन हो, शॉप इस्टेब्लिशमेंट हो, ये क्या नया है? नया होने से यदि हाँ जो है उनके कह सकते हैं कि कैप में एक फीदर है, तो वो आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो हम टैक्स कलेक्शंस है वो बहुत अच्छा काम उन्होंने किया, सराहनीय योग्य है। रानीगंज वासियों को बहुत उससे रिलीफ मिली और उस परंपरा को हम भी जारी रखेंगे। ऐसा नहीं कि उन लोगों ने किया तो हम कोई ऐसा सोचते कि आने वाली कोई भी टीम रहे, हम लोग यदि चुन के आते भी हैं और या जब हम लोग कमेटी में रहें तो हम लोग उसका पुरजोर सपोर्ट करेंगे। और उन सब प्रोग्राम्स जो आज तक चैम्बर 60 वर्षों से किया जा रहा है और करता रहा है और जो करने का प्रकल्प लेता है, उसमें हम सब साथ रहें। किसी भी प्रकार में खट्टे मीठे कुछ भी रह सकते हैं, वो मित्रों के अंदर का मामला है। यदि कोई भी व्यक्ति और विशेष करके एक संस्था का जो अध्यक्ष है वो उसको रिकॉर्डिंग कर रहा है, इसका मैंने उसका इंटेंशन ही था कि इस रिकॉर्डिंग को मेरे को इस्तेमाल करना है आगामी आने वाले चुनाव के परिप्रेक्ष्य में। उसने उसको रिकॉर्डिंग किया और रिकॉर्डिंग के दरमियान जो मैंने उस ऑडियो को सुना है, वो बार बार प्रोवोक कर रहा है। वो खुद विश्वस्त नहीं है कि आज सुशील लोहारूवाला किसकी तरफ है, संजय डालमिया किसकी तरफ है। बार बार एक ही चीज को वो बार बार बोला छोड़ो ना, और वहां से जो वक्तव्य आता है कि भाई सुशील तो इस फलाना का चमचा है, संजय फलाना का चमचा है, ये उसने रिकॉर्डिंग में कहा नहीं है लेकिन ये सुनने में आता है, और मैं भी एक थर्ड किसी का चमचा हूं, तो हम सब तो चमचा ही है भाई। आपस की मित्रता को, आपस के प्रेम भाव को यदि कोई चमचागिरी का शब्द या इस्तेमाल करे या तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए था। এদিকে আগামী 10ই মার্চ রানীগঞ্জ চেম্বার অব কমার্সের পরিচালন সমিতির নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করা হয়েছে। বর্তমানে প্রতিদ্বন্দ্বী দুই দলই নির্বাচনের জন্য জোর কদমে প্রচার চালাচ্ছে। তবে এখন দেখার চেম্বারের 706 জন ভোটাররা কোন দলকে জয়যুক্ত করছেন। আসুন শুনি ইউথ উইথ এক্সপিরিয়েন্স দলের অন্যতম সদস্য সলিল সিনহা কি বলছেন। চেম্বার অব কমার্সের অভিজ্ঞ মানুষেরা রয়েছেন, এই নির্বাচন থেকে এক অন্য দিশা মিলবে। আরও ইয়ং কিছু ছেলে যারা এসছে, আমার মনে হয় এদের এই গ্রুপে সামিল হয়েছে এই জন্যে আমি যে আগামী দিনে চেম্বারকে আরও একটা নতুন দিশাতে আমরা পৌঁছে দিতে পারবো। আর একটা জিনিস কি, কিছুদিন ধরে আমাদের চেম্বারে যেটা মেন জিনিস সেটা হচ্ছে রানীগঞ্জ চেম্বার করা শুধু ব্যবসা নয়, রানীগঞ্জের যে সমস্ত নাগরিক আছে তাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য এবং সব কিছুর ব্যাপারে চেম্বার কিন্তু প্রথমেই আওয়াজ তোলে। সেটা কিছুদিন ধরে কিন্তু আস্তে আস্তে এটা হারিয়ে যাচ্ছিল। আমার মনে হচ্ছে যে এটা খুব প্রয়োজন আছে এবং আগামী দিনে যদি আমাদের কাছে এই সমস্ত যারা অভিজ্ঞ এবং যারা প্রবীণ লোক আছে তাদের যদি আমরা আশীর্বাদ এবং সাহায্য পাই তো নিশ্চয়ই এইগুলো আবার নতুন করে যে সমস্ত সরকারি মহলে এবং ঠিক জায়গায় আমরা পৌঁছে। বিজয় খৈতান বলেন, বর্তমান কমিটি থেকে তাদের অনেকটাই প্রত্যাশা ছিল, তবে তা থেকে তাদের হতাশায় হাতে এসেছে। তিনি বলেন, চেম্বারের অভিজ্ঞ মানুষদের নিয়েও বৈঠক করেও এবারের নির্বাচনকে এড়ানো গেল না। युवा और अनुभवी दोनों के साथ हो रहा है, क्योंकि बड़ी अपेक्षा थी इन लोगों से जो अभी वर्तमान समय में कमेटी है, वो उनसे नेगोशिएशन की भी बात चली जैसा कि कन्हैया जी ने कहा, लेकिन वो एडमेंट हो गए कि हमारे ही और पदाधिकारी दोनों रहेंगे, तो उसके सिवा और कोई विकल्प नहीं था इलेक्शन में जाने के, और इलेक्शन हो रहा है। वोट देकर हमें और विजयी बनाए ताकि चैम्बर की गरिमा और निरंतर बनी रहे और उन्नति होती रहे। ওম প্রকাশ বাজুরিয়া বলেন, চেম্বার অব কমার্সের প্রাণপুরুষ স্বর্গীয় গোবিন্দরাম খৈতান, স্বর্গীয় গৌরীশঙ্কর নন্দী, স্বর্গীয় জওহরলাল সাউ, এছাড়াও রাম অবতার বাজুরিয়া, রাজকুমার কয়াল, অশোক সারাপ, দুর্গাপ্রসাদ সারাইয়া সহ অন্যান্য সদস্যরা চেম্বারের অগ্রগতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। তেমনটাই ইউথ উইথ এক্সপিরিয়েন্স দলের প্রার্থীরাও সেই পথেই চলার ব্রতী হয়েছেন। এটা খুব ভালো পদক্ষেপ। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मतलब होता है व्यापारियों का हित साधना, उसके साथ साथ सामाजिक जो काम है उनको भी करना। गोविंद राम जी खैतान जी ने जिस चैम्बर की स्थापना की थी
निर्भीक और लीडर के रूप में उनको जाना जाता था। उनके जाने के बाद जो हमारे आर.पी. खेतान जी ने है, कन्हैया सिंह जी ने है, विजय कुमार जी खेतान जी ने है, वही रोल अपनाया है। पूरे व्यापारी समाज को निर्भीक बनाने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। जबकि आतंक सरकार का व्यापारियों पर आया था, सेल टैक्स का हो, चाहे भेंट का हो, चाहे इनकम टैक्स का हो, उस सब आतंक से हमारे चेंबर ने खड़े होकर के व्यापारी समाज को निडर बनाया था। चेंबर ऑफ कॉमर्स के इतिहास में जिन संदेशों का विशेष योगदान रहा है, गोविंद राम जी खेतान के साथ साथ जो काम किया है, उनमें हमारे बड़े भाई साहब रामतार जी बाजोरिया भी हैं और अशोक कुमार सराफ जी भी हैं। और बहुत पहले जो दोस्ती थी, जो अटूट दोस्ती जो जानी जाती है, गौरी शंकर नंदी जी और जवाहरलाल साहब जी भी, गोविंद बाबू का बहुत बड़ा सहयोग रहा था, दुर्गा प्रसाद सराय जी का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा था, और बहुत से बुजुर्ग सदस्य जी, अभी तुरंत मुझे मुँह पर नाम नहीं आ रहे हैं, इन सबों ने मिलकर रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स का इतिहास, स्वर्णिम इतिहास बनाया था, जिससे कि खाली रानीगंज में नहीं, हमारे पूरे साउथ बंगाल में एक निडर और निर्भीक रूप से चेंबर ऑफ कॉमर्स जाना जाता था, जाना जा रहा। অনিশ টুডি বলেন, এই পরিচালন কমিটির নির্বাচনে তিনি সবচেয়ে কনিষ্ঠ। ইউথ উইথ এক্সপিরিয়েন্স দলের সঙ্গে থাকার পেছনে কারণ একটাই, অভিজ্ঞ মানুষদের তিনি সান্নিধ্য পাবেন এবং এগিয়ে চলার পথের সঠিক দিশা পাবেন তিনি। यही लगा था कि हमारे जो चेंबर ऑफ कॉमर्स में एक युवा शक्ति आनी चाहिए, एक युवा सोच आना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। बिकॉज गवर्नमेंट भी जिधर जा रही है, अगर आप देखेंगे तो हमारे गवर्नमेंट हमेशा से ये मैसेज दे रही कि सबसे ज़्यादा यूथ अभी के दिन इंडिया ही में ही है, एंड उसको बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट बहुत रकम की प्रोग्राम भी कर रही है। मैं जिस ग्रुप में जुड़ा हूँ उसका नाम यूथ विथ एक्सपीरियंस है, एंड इस ग्रुप में जुड़ने का मुख्य कारण यही है कि मेरे पास एज है, उनके पास एक्सपीरियंस है। सो ये एज और एक्सपीरियंस जब ब्लेंड होगा तो इट विल गिव वंडर्स, एंड ये देखा भी गया है कि ये काफ़ी एक प्रूवन रिजल्ट फैक्टर है, हमेशा से ही ये काम करता है। आज उनके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, जो कि हम युवा हमेशा उनको चैलेंज करेंगे, एंड उस चीज़ को जब हम लोग चैलेंज करेंगे तो वो उनको भी मोटिवेट करेगा अच्छे कुछ काम करने के लिए, और वो हमारे को और चैलेंजिंग कुछ देंगे, जिससे हमारे लिए एंड एज यूथ हम लोग को चैलेंज एक्सेप्ट करना बहुत अच्छा लगता है, तो हम लोग वो चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे और अच्छे से और काम करेंगे। অরুণ ভারতীয়া বলেন, 5 বছর ধরে তিনি যুক্ত রানীগঞ্জ চেম্বার অব কমার্সের সঙ্গে। এটুকু অভিজ্ঞতা থেকে তিনি জেনেছেন চেম্বারকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য নতুন প্রজন্মের যুবকদের এগিয়ে আসতে হবে এবং চেম্বারের বর্ষিয়াংদের সঙ্গে মিলেই কাজ করতে হবে। हो रहा है, कुछ लोग एडमेंट है, इस कारण से चुनाव हो रहा है, तो मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। और मैं तो ज़्यादा दिनों से चेंबर में नहीं हूँ, किंतु 5 सालों से मैंने जो एक्सपीरियंस देखा है कि एक्सपीरियंस के साथ यदि यूथ मिलता है तो अच्छा काम होगा, और ये हम नहीं, रानीगंज वाले आपको बताएंगे। तो क्या एजेंडा सेट किए हैं आप लोग जिसको लेकर आप लोग उतर रहे हैं? हमारा एजेंडा एक ही है कि हम लोग यूथ विथ एक्सपीरियंस चेंबर में काम करना चाहते हैं, रानीगंज के लिए काम करना चाहते हैं, रानीगंज वालों के लिए काम करना चाहते हैं, ताकि समाज के लिए एवं व्यापारियों के लिए जो भी हमारे यूथ वर्क कर सके और हमारे जो एक्सपीरियंस मेंबर्स हम लोग को गाइड कर सके, हम भलाई के लिए करें। শ্রবণ কানুডিয়া বলেন, চেম্বারের পরম্পরার ভিত মজবুত হয়েছে যাদের হাত ধরে সেই প্রবীণ মানুষদের সঙ্গে মিলে কাজ করার অভিজ্ঞতাটাই এক অন্যতম প্রাপ্তি তার কাছে। चेंबर में जो हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी लोग हैं, उनको मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ, उनके कार्यशैली को जो काम वो लोग करते आ रहे हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन में आप चेंबर अपना योगदान देना चाहता हूँ। तो जिस ग्रुप के साथ जुड़े हैं, इसके पीछे मतलब क्या कारण रहा कि आपने इसी का चुनाव किया और इसी से आप एक कैंडिडेट के रूप में उतरे हैं? इस ग्रुप को मैंने बचपन से देखा है, चेंबर को उन्होंने अपने हाथों से खड़ा किया है, तो चेंबर की बारे में जितनी जानकारी इन्हें है और किसी को नहीं है, इसलिए मैं इस ग्रुप से जुड़ा। সুশীল কুমার নেহরুবালা বলেন, তিনি ইউথ উইথ এক্সপিরিয়েন্স দলের সাথেই, তবে তিনি বলেন তিনি চেম্বারের অভিজ্ঞ প্রবীণ মানুষদের চলার পথের পাথেয় হতে চান। वहाँ से नेक्स्ट अपना नाम है उन लोग को ओमिट करने बोल दिया।
तो मैं उस ग्रुप में नहीं रह सकता। यूथ में मैंने बोलते कौन कौन लोग हैं आपके साथ? मेरे साथ है आपके जो हमारे विजय खेतान जी है, राजू बाबू है, संदीप झुंझुनू वाला है, ऐसे करके हम लोग 19-18 आदमी का ग्रुप है, जिसमें ग्रुप का नाम है यूथ एंड एक्सपीरियंस। तो आप इनके साथ इस ग्रुप में क्यों हैं? इनके साथ क्यों लड़ना चाहते हैं चुनाव इनको साथ लेकर? इस ग्रुप में मेरे को माने इस ग्रुप में रहने का कारण है कि ये कुछ हमको एक्सपीरियंस भी, अनुभव का भी ज्ञान होगा और कुछ यंग पीढ़ी लोगों के साथ भी जुड़ित हो गए, तो कुछ नया बात आएगी चैम्बर संस्था के बारे में। संस्था का उद्धार हो सकता है, संस्था का बचत हो सकता है। पब्लिक टाइम्स।